गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक चंदोला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चंदोला क्लासेस। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में, जो चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग, पहले तो मैं आपको समझा दूं, डायरेक्टिंग जो है वो ओवरऑल किस पे, चार डिफरेंट जो एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, दैट इज लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। इन सारी चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आपसे ज्यादातर एमसीक्यूज जो होंगे भी वो डायरेक्टिंग के इन्हीं एलिमेंट से होंगे। चलिए बहरहाल पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Google famously implemented the 20% time policy, allowing employees to dedicate 20% of their work hours to pursuing project or learning new skill outside of their main responsibilities. Okay, so identify the non-financial. Obviously, it is a non-financial incentives. So, which type of non-financial incentives? Employee recognition? नहीं. Organizational climate? नहीं. This is employees एम्पावरमेंट, यानी वो एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि आप अपने 20% जो अपने वर्किंग आवर्स है वो किसी नई चीजों को सीखने में लगाओ जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे हटकर। ओके, तो दिस इज एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा है गीतांजलि Makhan is a successful business leader. She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing a meaningful experience, the jobs themselves become a source of motivation to individuals. Okay, the non-financial incentives that has been discussed in the above cases. Okay, उसने कहा कि अगर काम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ज्यादा वैरायटी, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक ये अपने आप में क्या बनता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। तो यहां पे क्या है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन नहीं, दिस इज जॉब इनरिचमेंट। यस, दिस इज जॉब इनरिचमेंट, यानी आप अपनी जॉब को, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन जॉब को ही जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बनाए, काफी अच्छे तरीके से वो करे, सो दैट कि वहीं पे मतलब वो जो इन्वायरमेंट है और जो वर्क कल्चर है वही एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा हो। इसमें कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। अगले पे आ जाओ, Mr. Sarthi, the ex-chairman of Swadesh Limited, built up his successor before retiring. Okay, following the norms set up by himself, he handed over the company to the co-founder, Mr. Shravan, who had the potential to bring about change in the behavior of others. Name the concept of management which was the reason why Mr. Sarthi chose Mr. Shravan to be his successor. Motivation तो नहीं है, this is all about the leadership. ये क्या है? This is all about leadership, कि भाई वो जानता है who had the potential to bring about change in the behavior of other. तो this is leadership. Okay, तो और देखिए आपके एमसीक्यूज होंगे इन्हीं चार चीजों के आसपास ज्यादातर, कई बार डायरेक्ट होगा, कई बार इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद चौथे उस पे आए, in an organization, employees always feel that they are under enormous unnecessary stress as the manager does not provide any information about future plan. Manager does not provide any information about future plan but simply instruct them what to do. Okay, so he also not listen to any of the suggestion given by the subordinate. Identify the types of leadership. Okay, obviously it is autocratic leadership, है ना। यहीं पे तो होता है कि जहां पे जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की नहीं सुनता है और वो सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये करना है ना। मतलब किसी भी डिसीजन में ना तो डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करता है, ना किसी तरीके की चीजें उनको बताता है। ओके, during the negotiation process, the American teams was use idiomatic expression, ठीक है, and colloquialism that are common in English but may not translate well into Japanese. Simple सी बात है। okay, तो for example they use phrase like let's hit the ground running or let's get the ball rolling to convey a sense of urgency and enthusiasm. ओके, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको ये बताना है, इफ दे वांट टू कन्वे द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड सेंस ऑफ एंथुजियाज्म, तो वो ये बोलने के बजाय कि हाँ इट इज वेरी अर्जेंट और ये सारी चीजें, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग और लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। ओके, उसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर। इसमें कौन सा सिमेंटिक बैरियर है? देखो यहां पे अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज तो नहीं है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग नहीं, वो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सिंबल है कि जो अलग अलग मीनिंग के साथ, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन ये भी नहीं है। यहां पे क्या है? टेक्निकल जर्गन्स,
ठीक, कि भाई वो कुछ ऐसी टेक्नैलिटी की वजह से, है ना, तो जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो कन्वे मैसेज को नहीं करवा पाते हैं, वो किसी स्लैंग को या किसी वर्ड को या किसी लाइन को यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर मैसेज को या एक पर्टिकुलर सेंस को कन्वे करने के लिए। ओके, तो ये था फिफ्थ। इसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ। ये कह रहा है कि एट support.com देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर अ गुड सजेशन, thus the subordinate are not willing to offer any useful suggestion to their superior। okay, ये जो कंपनी है support.com, ये किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन नहीं देती किसी अच्छे सजेशन के लिए। तो भाई जो सबॉर्डिनेट थे उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसा सजेशन प्रोवाइड करा के कि जब यहाँ पे किसी तरीके का कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता या किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बैरियर, कौन सा बैरियर है ये? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है ना, कि ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल, भाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करा रहा है तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड सजेशन। उसके बाद है इंदिरा नुई, served as the CEO of PepsiCo from 2006 to 2018, during which she implemented several strategies initiatives that reshaped the company and solidified its position as global leader in the food and beverages industry. She recognized early on the shifting consumer preferences towards healthier food and beverages and diversified PepsiCo product portfolio to include more nutritious food options. तो identify the element of directing implemented in the, by motivation नहीं, it is all about the leadership of Indra Nooyi ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इंदिरा नूई का क्या है? लीडरशिप। द करेक्ट आंसर इज लीडरशिप, ना तो सुपरविजन है ना कम्युनिकेशन है, इट इज ऑल अबाउट क्या? लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट उस पे आते हैं। Which type of incentive is highlighted in the given image? यहाँ पे एक इमेज है, हालांकि थोड़ा सा क्लेरिफाई नहीं हो रही, यहाँ पे डॉलर बना हुआ है, ठीक। तो अब जब बता दिया कि डॉलर बना हुआ है तो विच टाइप ऑफ, नॉन मॉनेटरी तो नहीं हो सकता, स्टेटस भी नहीं हो सकता, सिक्योरिटी भी नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच सिमेंटिक बैरियर, कौन सा सिमेंटिक बैरियर जो है वो इस पिक्चर में आपको शो कर रहे हैं। भाई ये कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है ये भाई, और यहां पे ही वांट टू कन्वे अ मैसेज दैट कॉफी प्लीज, और इज नॉट गेटिंग द, कि वही वो क्या बोलना चाह रहा है, या ये उसको नहीं समझ पा रहा है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। ये किसकी वजह से? क्योंकि देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दोनों, इन दोनों के बीच में ना टेक्निकलिटी की डिफरेंस आ रही है ना भाई। वो इंग्लिश को सही तरीके से, बट ये क्या है, ये कोई और लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहा है या किसी और लैंग्वेज में कन्वे कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज भी नहीं है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग भी नहीं है, टेक्निकल जर्गन। यहाँ पे भी द करेक्ट आंसर इज टेक्निकल जर्गन, है ना, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस भी नहीं है। ओके, तो और इस तरीके के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास कई बार आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। ये कह रहा है अहमदाबाद बेस्ड, है ना, त्रिधा टेक, a leading provider of digital transformation services, has facilitated 13 employees with 13 car for appreciation of their hard work and dedication towards the company's mission over the years. The company has gifted Toyota Glanzer car to the employees who performed the best and contributed the most. The CEO said, I will strongly believe that sharing the wealth we have created with our employees, identify the non-financial incentive practiced by Tridha Tech। कौन सा है? एम्प्लॉय, देखो कई चीजें हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन की, वो तो नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट भी नहीं है, पार्टिसिपेशन भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी नहीं है। उसने क्या कहा, ये इस लाइन से हम लोग समझते हैं, इसने कहा द सीईओ सेड, आई स्ट्रांगली बिलीव इन शेयरिंग द वेल्थ वी हैव क्रिएटेड विद आवर एम्प्लॉयज। ओके, यानी ही इज रिकॉग्नाइजिंग देयर हिज एम्प्लॉय, वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो दिस इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड। ओके, असर्शन है द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज इज द रिसीवर, नहीं, द पर्सन हु कन्वे द मैसेज इज क्या, सेंडर, नॉट रिसीवर। तो ये तो गलत है। ओके, अब असर्शन और रीजन में से जब कोई भी गलत हो जाता है तो ये तो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी कि वो सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ओके, तो नॉइस इज द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन गलत है, ए गलत है और बी, मतलब ये ऑप्शन सही है, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ओके,
अगला है, ये भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय रूमर्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशन एंड समटाइम्स मे हैम्पर द वर्क एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। Informal channels are used by the managers to transmit information so as to know the reaction of his her subordinates। ये इसी का एक्सटेंशन भी है कि नहीं भाई? वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, he created the message, और अब उसी को बोले तो वही क्या है, रूमर्स के तौर पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन का क्या है, एक्सटेंशन भी है। और देखो एग्जाम में भी आपने ऐसे ही लेना है, इतना ही टाइम लेना है, इससे ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं है, फटाफट, क्योंकि आपके पास बाकी सब चीजों में ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कई केस स्टडीज ऐसी होती हैं जहां पे आप अटकोगे या जो चीजें जो है वो ज्यादा टाइम लेगी भी। ये कह रहा है डायरेक्टिंग इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एफर्ट्स टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज एफर्ट्स, कि एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा है डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड इन द डिफरेंट जॉब पोजीशन थ्रू सुपरविजन। ये इसका एक्सटेंशन है, बिल्कुल सही है। द ऑप्शन इज ट्रू, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद है आपके पास स्टेटमेंट फॉर, अच्छा अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हमारे पास। ये कह रहा है मोटिवेशन अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन क्या हो रहा है, इंडिविजुअल नीड से अराइज होता है, ये तो सही है। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉज रेस्टलेसनेस in the individual which prompts some action to reduce such restlessness। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। both the statement are correct, the correct option is C। ओके, उसके बाद अगला है हमारे पास statement 1, a good leader always allow his follower to ventilate their feelings and disagreement but persuades them by giving suitable clarification। ये भी सही है। ओके, और स्टेटमेंट सेकंड है लीडरशिप इज द सम ऑफ ऑल थिंग वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। नहीं, ये नहीं है सही। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद अगले उसमें आ जाओ। ये कह रहा है ये भी स्टेटमेंट बेस है। ये कह रहा है एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में nor have uniform effects on all the members। बिल्कुल सही बात है। एक ही तरीके का मोटिवेशन सबके ऊपर कोई किसी एक तरीके का इफेक्ट तो नहीं डालेगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बात है। हाई रेट ऑफ टर्नओवर कंपल्स मैनेजमेंट टू गो फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एंड ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। ये भी सही है। तो दोनों ही चीजें सही लग रही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब फिर हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आया। ये कह रहा है दैट सुनील दिल्ली इज अ सेफ्टी ऑफिसर इन अ रेप्यूटेड पीएसयू सेक्टर। ओके, he supervised the worker towards the predetermined goals of the organization and direct how to eradicate unsafe practices। okay, किसी भी तरीके की अनसेफ प्रैक्टिसेस जैसे कि आग लगना, फायर ब्रेकआउट, एक्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस एक्सेट्रा। on one such instance there was huge fire breakout in the underground mines and the worker morale was down and demotivated because of several risks and hazard। okay, ठीक है। Mr. Delhi observed the whole situation and consulted with all his workers and consistently monitored, guided and inspired them to integrate their efforts and accept the situation as a challenge and take educate safety measures for the fire extinguishers and subsidizing its efforts। Thereby production turnover was outstanding and outperformed by other subsidiaries। Mr. Delhi was re-recognized with bravery awards from CIL। okay, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को समझाया, उन्होंने उनको कहा कि भाई टेक दिस, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज चैलेंजेस, और उन्होंने कुछ सेफ्टी मेजर्स के ऊपर भी काम किए ताकि आग ना लगे, और इस तरीके की चीजें, कुछ सेफ्टी मेजर्स के ऊपर काम भी किया। एंड फाइनली मिस्टर दिल्ली वाज रिकॉग्नाइज्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम CIL। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मिस्टर दिल्ली
work towards predetermined goal and organizations which important function of directing highlighted here। कौन सा है यहाँ पे? देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं, क्या मीन्स ऑफ मोटिवेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Here the correct option must be क्या? Initiate action। ओके, तो उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग पे काम किया? इनिशिएट द एक्शन, क्योंकि फैसिलिटेट चेंज भी नहीं है और ब्रिंग स्टेबिलिटी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगला है मिस्टर डेली कंसल्टेड विद ऑल वर्कर, ही लिसन टू देयर ओपिनियंस, विच फॉर्म ऑफ लीडरशिप डिफाइंड हियर? कौन सा है? दिस इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज की सुन रहा है। ब्रेवरी अवार्ड इज डैश फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कौन सा होता है? स्टेटस नहीं, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, कैरियर एडवांसमेंट भी नहीं होती, इट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। उसके बाद आ जाए अंडर मैस्लोज थ्योरी, which need of Mr. Daly has been met through respect and recognition among other employees। कौन सा होता है? respect recognition के लिए self actualization नहीं, safety and security भी नहीं। this is all about esteem need। esteem need क्या बताता है? esteem need में तो होता है जहां पे respect and recognition के बारे में डिस्कशन करते हैं, physiological needs के बारे में भी यहाँ पे कोई वो नहीं है ना। the correct option is C, esteem need। तो ये हमारे पास कुछ 20 हमने इंपॉर्टेंट MCQs, और सही बताऊं तो डायरेक्टिंग में बहुत सिंपल एमसीक्यूज ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकते हैं और थोड़ा सा केस स्टडी के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि ये जो, और जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बिजनेस स्टडीज के, वहां पे डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जरूर उस चैप्टर को देखो, उस वीडियो को एक बार देखो कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वहां पे डायरेक्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बताए हैं। आप लोग देखोगे कि उसमें से ही ज्यादातर टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर भी किए हुए हैं उन टॉपिक्स को लेते हुए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टिंग के एमसीक्यूज बनाए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का आखिरी चैप्टर और पार्ट ए का भी आखिरी चैप्टर जो है दैट इज कंट्रोलिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, उसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।